Good afternoon, everyone. Let's start with the new topic justice, its concept, roles theory, and its communitarian critique. Now, it's all the more required to arrive at some easy to understand definition, easy to understand concept of justice. And that's required because we are students of political science. And more often than not, even if we belong to Homo sapiens, this species, even if we understand this in deep in our psyche that we belong to this animal kingdom, but because of exigencies of the time, because of various responsibilities that has been shouldered upon us from this exam, from our academic circle, from universities, and from various quarters that need you to specialize in your field. So we get into that role so deep that we often forget that it's the generalization that helps in understanding life in itself. Now, that's a philosophical angle, but that's not our part. Our part is to understand the justice. And then here comes the beauty of political science, because I believe, even though I teach anthropology, even though I teach many other subjects, but I guess political science is the subject which is quite dynamic, the most dynamic, and it holds in itself the potential to study all the interrelated aspect of our life, because political science is about the commonality, about the commonness. So कोई भी चीज जो है आज के टाइम में, even COVID-19 affect us, and it has affected us. That's why it was declared a pandemic. And because of its global ramification, now many of us are studying about RNA world, about viruses, about this parasitism, and ecological principle in which one species benefits from the demise of other species. Okay, now I guess some of you might be asking, why is this whirlpool? Why not arrive at the conclusion? Why not, get to the point? Now that's the thing. Unless we understand what made us to arrive at this concept, we will not be able to understand this concept. So whatever I am talking about, the parasitism, the philosophical angle, spatialization, all of them, they have a bearing on this conception, justice. Now, the thing that connect all of them is our species, Homo sapiens, and we belong to the animal kingdom. Now, the thing is, many other species, they show the power dynamics. They show the power hierarchies. You might have heard about the same thing in various pack animals. Lions, they show such heightened power hierarchies. Wolves, dogs, many other species. So now this conception of power dynamic, which has a bearing on the concept of justice, it is that if power is concentrated in a single hand or in any other group, now that power, it will lead to the misuse of it. Now you can say the power for oneself is the destruction for another or harm for another. Now, to prevent that harm, we need a concept. We need something that can stop those people, those groups who are misusing their power with this semblance, with this authoritarian, or with this analogy. Then no, you cannot use this your power beyond certain point. Now the question comes, those who are holding power, those who have nuclear weapons, sometime in the past those who have metal tools, those who had specialized weapons. So यहीं पे even lions जो who are young, who have sharp claws, who have frightening roars, they also ask this question: why we have power? Why should we stop us? Now then comes the question:
You have to stop us. You have to be stopped, and you have to stop yourself, because if you kill everyone or if you misuse your power, then you are going to destroy the very thing that makes us a species. We live together. Now, you can use your power for your own benefit. You can use your power to protect your family. You can use your power to gain some benefit, but you cannot misuse your power. And that's when the concept of justice comes. That there are some people who live their life and they exist. They live the semblance of life. They need the luxury of their life just because they are humans. And that's where this concept comes in. Now, the second angle to it, the whole life, it exists in cycles. The seasons, they exist in cycle. All of the climatic phenomena, they exist in cycle. Even the process by which any new species live and die, it goes in a cyclical manner. So all those cycles, they tell us about one thing, that a balance has to be achieved. Excesses in any form, they will lead to the demise of one species, demise of an individual or any group. In other way, excesses will lead to harm. So that balance had to be arrived at. And justice is precisely what the balance is to justice exists to maintain that balance. And that's why आप लोगों ने देखा होगा कोर्ट के अंदर जो जो लेडी होती है उसके हाथ में एक तराजू होता है, एक बैलेंस होता है, वेट्स. एंड दैट्स हाउ judiciary जो है, courts जो है, they arrive at any conclusion by looking at both the evidence and then counter evidence, whichever way you say it. जैसे डिबेट के बारे में कहें तो दोनों साइड के पॉइंट जो है वो दोनों देख के it will arrive at a conclusion, and that's the exact measure of justice. So यहाँ पे now इन दोनों साइड में क्या रखा जाएगा, व्हाट विल बी मेजर्ड अगेंस्ट व्हाट, ये जो है प्रिसाइसली ये हमारे ऊपर है. हम होमोसेपियंस पे या हम जो होमोपोलिटिकल्स हैं उनके ऊपर, हर एक स्पीशीज, हर एक जो जनरेशन आएगी उसके हिसाब से जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है ये अलग होता जाएगा. बट अल्टीमेटली इट विल बी अबाउट बैलेंस. एंड फाइनली अब यूपीएससी पर्सपेक्टिव से एक understandable, easy to understand definition, which is justice defines how rights are assigned, how responsibilities are shared, and how resources distributed. So, in simple, justice is about the allocation of resources and powers. फिर बात करते हैं classical thinkers की. So classical thinkers, they had traditions in their mind. So most of their ideas, they were tilted more towards ethics and virtues. सो जैसे प्लेटो की या एरिस्टोटल की बात करें, सो दे लिंक जस्टिस टू वर्च्यू एंड ऑर्डर. लेकिन यही सेम एनलाइटनमेंट पीरियड की बात करें, सो दिस पीरियड इट स्टूड अपॉन द फाउंडेशन ऑफ रीजनिंग एंड रैशनैलिटी. सो यहाँ पे सम रैशनल, सम प्रैक्टिकल माइंड वाज देयर. सो जैसे जेरेमी बेंथम है, he gave the utilitarian principle, that is justice is about utility. And now that utility might have talked about some kind of balance. And that balance, that justice is when maximum people, they have maximum happiness. Maximum people. A simple thing. The resources, they are allocated to maximum people. So here in that time, because of the rationality, a practical bent of mind, and because वो टाइम जो है वो उस हिसाब से था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड people, they were more oriented towards at least having something in their hand, having something in their pocket. So वो खुद एक जो है एक क्वांटिफिएबल लाइफ जी रहे थे. क्वालिटेटिव लाइफ जो है उस टाइम उनके क्राइटेरिया दिमाग में था ही नहीं. यू समटाइम जो है मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ तो आई माइट गेट दिस स्ट्रेंज आइडिया कि एक टाइम था जिस टाइम लोग ये सोचते थे कि कैसे करके एटलीस्ट स्लीप मिल जाए, एटलीस्ट फूड मिल जाए, एटलीस्ट समथिंग हाथ में हो. सो वो था, वो एक टाइम था. सो उनके यही है, अगेन क्वांटिटेटिव
the conception of justice was there. फिर यही जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें, so he again, the same utilitarian principle, greatest happiness for greatest number. So again a quantifiable criteria. फिर उसके बाद एक another band, egalitarian social principles. So now they talk about economic and social inequalities. So जहाँ जब society जो है industrial revolution से आगे बढ़ी and the fog cleared, और फॉग के बाद जब दिखाई कि सोशल इनइक्वालिटीज जो है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ गई है दिन, और जब तक वो इनइक्वालिटीज रिड्यूस नहीं होती, सोसाइटी यहाँ पे बैलेंस नहीं होगी. सो अगेन यहाँ पे जो द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है, द बैलेंस दैट आई टॉक अबाउट, इट वाज अबाउट द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. फिर यही आगे बढ़ते हैं. फिर कंटेम्प्रेरी टाइम में जब और चीजें आगे बढ़ती गई, यहाँ पे जॉन रॉल्स ही हु गेव the theory of justice as fairness. So यहाँ पे इस टाइम तक आते आते the life, the various aspects of polity, they took the qualitative turn. Now सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं हो रही थी, अब now people started looking at their life as something that need to be lived. तो इसी lived experience में they experimented with various things, they tried to explore various other aspects, और उसी में यहाँ पे क्वालिटी, लाइफ में क्वालिटी आने की जो बातें होने लग गई. एंड देन जॉन रॉल्स he gave a thought experiment that included original position veil of ignorance. फिर देन his ideas जो है, जॉन रॉल्स के आइडिया जो हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव में, क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो मैं एक ब्रॉडर आउटलुक दे रहा हूँ. सो जब उसने अपने थियरी दी जस्टिस की, तो उसमें फिर जो कम्युनिटेरियन थिंकर्स हैं वो थिंक इन solidarity of community, who think in conservative and in terms of customs and ritual that bind people. उन्होंने फिर कहा है कि yes, John Rawls जो है, he is, he is talking in a purely rational, quite optimistic, utopian kind of idea. But that ideal, that person who he is talking about is an isolated individual. क्योंकि हम जो है सोसाइटी में रहते हैं, वी डू नॉट लिव दैट इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ कि हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचे. क्योंकि जॉन रॉल्स के क्राइटेरिया जितने भी थे, मोस्ट ऑफ देम दे सेंटर्ड अराउंड इंडिविजुअल. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वालिटेटिव aspect of life, then it certainly we will look at the diversity of that qualitative experience. क्योंकि if we think about one size fits all, then वो एक जो क्वांटिटेटिव आइडिया होगा, जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है, आप लोग ये समझ सकते हैं. क्वालिटेटिव लाइफ, इट्स लाइक व्हाट आई वांट, मेरे लिए क्या सही है, कौन से कपड़े जो है, कौन सा फूड जो है, कौन सा मोबाइल फोन जो है, कौन सा म्यूजिक जो है. सो ये सब जो है, अगर मैं इनके बारे में सोचूंगा तो दे विल एनहेंस द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ. लेकिन वो इंडिविजुअलिस्टिक हो गए ना. अब अगर गवर्नमेंट या फिर कोई भी थिंकर जो है वो ये कहेगा कि नहीं, यू हैव टू लिसन टू दिस पर्टिकुलर सिंगर, दिस पर्टिकुलर दिस साउंड ट्रैक, या ये कपड़े पहनने, या ये खाना खाना है, तो फिर वो एक जनरलाइज अप्रोच हो गई. दैट्स क्वांटिटेटिव. सो रॉल्स अपनी जगह सही था, वो लोग भी अपनी जगह सही थे. एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू द कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, द व्यूज ओवर टाइम. सबसे पहले क्लासिकल जस्टिस. सो जैसे बताया, जो ट्रेडिशनल फिलोसोफर थे, पोलिटिकल फिलोसोफर, most of them they talk about ethics and virtues. So Aristotle, he said justice is giving each person their due. Now again the concept of balance. So यहाँ पे जो एरिस्टोटल ने बात की है, to achieve that balance, so in order to achieve that balance, person has to be given something, because the person he is missing. अगर इसी weights में measure करें, so यहाँ पे जो सोसाइटी जो उस पर्सन से डिमांड कर रही है, इट इज टू मच, एंड दैट पर्सन ही नीड समथिंग. नाउ यही चीज जो है, ये कंसेप्ट बहुत सारे अदर थियरीज पे, बहुत सारे अदर सिचुएशन पे, इवेंट्स पे यूज कर सकते हैं. लेट्स से सम क्राइम हैज बीन कमिटेड. नाउ बिकॉज अ क्राइम हैज बीन कमिटेड, समथिंग हैज बीन स्नैच्ड फ्रॉम द पर्सन, लाइक डिग्निटी. नाउ डिग्निटी हैज टू बी गिवन. फिर let's say
a crime has been committed in which he has lost some assets, so assets की कमी है, so assets वापस देते ही या compensation देते ही the balance will be achieved. सो ये दोनों सिंपल एग्जांपल दिए, आप लोग जो है बहुत अदर अदर इवेंट्स हैं, क्राइटेरियाज जो हैं, सिचुएशन है, उनको रख के आप समझ सकते हैं कि व्हाट वाज हिज मेन पॉइंट, द चीफ पॉइंट. नाउ ही divided justice in two parts: distributive justice, which is distributing benefits like wealth, honors, and office proportional to the merit, and the second one is commutative or rectificative justice, which is correcting injustices. Like if something has not been given, if something has been deprived of something, and that deprivation, it can range from, you know, privacy, from dignity, from rights to some concrete assets. तो जो भी उस पर्सन से लिया गया है वो उसको वापस मिलना चाहिए. सो दैट वाज द आइडिया ऑफ ट्रेडिशनल आइडिया, एंड इन पर्टिकुलर द आइडिया ऑफ एरिस्टोटल. देन ही आल्सो टॉक अबाउट कि जस्टिस इज नॉट अबाउट हैविंग लॉज, बिकॉज लॉ जो है एक तरह से एक प्रोसीजर, एक ड्यू प्रोसीजर है दैट that help people arrive at that balance. Otherwise, justice जो है, it is about cultivating virtues. क्योंकि अगर सबके अंदर वर्च्यूज होंगी, हर कोई आदमी अगर सही तरीके से काम करेगा तो फिर जो है अल्टीमेटली वही बैलेंस अचीव हो गया. हर कोई जो अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इफ some people, they are earning from their hard work, and then there are some scammers जो उन लोगों को लूट लेते हैं किसी न किसी तरीके से. सो इट्स अ मैटर ऑफ इनजस्टिस. सो वर्च्यूज होंगी तो अल्टीमेटली क्राइम नहीं होंगे. बट ये बात कर सकते हैं कि उस जो ट्रेडिशनल आइडिया था वो अगेन इट वाज इट टिल्टेड टू मोर टुवर्ड्स एथिक्स. सो हम ज्यादा उनके बारे में नहीं कह सकते. देन ही टॉक अबाउट यूडाइमोनिया, अ गुड लाइफ. सो सोसाइटी में रहना है, यह एक जो जिस पुलिस की बात की, जो सिटी स्टेट की बात की, तो यहाँ पे स्टेट हो गया, स्टेट यानी गवर्नमेंट जो है, या फिर पीपल इन जनरल, दोनों के लिए अल्टीमेट गुड, अल्टीमेट एम इज टू अचीव दिस गुड लाइफ, यूडाइमोनिया. और फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो इंडिया के जो रिजर्वेशन डिबेट्स हैं, इवन अफर्मेटिव एक्शंस जो हैं, दे टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस गिवन बाय एरिस्टोटल. क्योंकि जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड हैं पीपल, स्पेशली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स पीपल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सो उन सब के लिए अगर गवर्नमेंट, जो स्टेट जो है, इट प्रोवाइड सम अमेनिटीज, सो इट्स अ काइंड ऑफ रेक्टिफाइंग द ओल्ड डिफेक्ट्स, रेक्टिफाइंग द ओल्ड वुंड्स. फिर बात करते हैं मिडीवल कंसेप्शन की. नाउ मिडीवल टाइम वाज अ टाइम ऑफ सुपरस्टिशन, ऑफ रिलीजन, ऑफ इन्फैचुएटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च. तो वहां पे उस टाइम पे जो भी पोलिटिकल सीन होगा, जो पोलिटिकल थियरी होगी, उसमें कुछ ना कुछ रिलीजियस एलिमेंट होगा. जैसे थॉमस एक्विनास जो है, he gave the political idea of justice that was mixed, that was dipped in Christian theology. So he saw justice as both a cardinal virtue and a reflection of a divine law. So a religious infusion was there, and he classified justice: general justice, which is concerned about common good, and particular justice, which is both distributive and commutative. Distributive means distribution of benefits according to merit. और उस टाइम पे दिस मेरिट थिंग वाज लेस फेवर्ड. मेरिट थिंग की जगह द पैट्रोनेज वाज देयर. क्योंकि मिडिवल एज जो है, इट वाज डार्क एज. नाउ डार्क एज में जब भी मैं डार्क एज कहता हूँ, सो इट्स बिकॉज रैशनैलिटी वाज नॉट देयर. बट मिडिवल एज के अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं. नाउ back to our point. So particular justice first, distributive justice, which is distribution of benefits according to patronage, according to proximity, and then some element of merit was there, and that's why the medieval age it worked. merit नहीं होता अगर सब लोग जो है, अगर ये बोट लिकर ही होते हैं, तो सोसाइटी चलती नहीं. एंड कम्यूटेटिव,
which is about correcting the defect, correcting the harm, compensating. जैसे इंडिया के अंदर भी जो धर्म है, द कंसेप्ट ऑफ धर्म, विच इज राइटियस ड्यूटी इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, सो यहाँ भी ये सेम कंसेप्ट है, धर्म विच मीन्स हर एक की जो कुछ ड्यूटीज होती है, द एथिकल ड्यूटीज, एंड अगर वो एथिकल ड्यूटीज आप पूरी करें, सो ऑटोमेटिकली जो है जस्टिस विल बी सर्व। क्योंकि इफ लेट्स से आपने कोई क्राइम किया है, now your ethical duty, it calls you to speak truth, to accept your defect, to accept your wrongdoing. So अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, ड्यूटी के हिसाब से चलेंगे, तो वैसे भी आप जो है अपना क्राइम जो है कबूल कर लेंगे, तो वैसे ही वो जस्टिस सर्व हो गया। नाउ हम चलते हैं फिर एनलाइटमेंट पीरियड में, लिबरल एंड यूटिलिटेरियन जस्टिस। नाउ इस टाइम तक आते आते जो जस्टिस है, कंसेप्शन ऑफ जस्टिस बिकेम क्वालिटेटिव, जिसका आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। सो दिस क्वालिटेटिव टर्न, इट लेड टू अ बिलीफ इन इंडिविजुअलिस्टिक हैप्पीनेस, हैप्पीनेस दैट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअलिस्टिक नेचर। सो यहाँ पे जितने भी राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स लाइक लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो जॉन लॉक ने कहा, सो यहाँ पे द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, दोनों ही सेम प्रिंसिपल के लिए, जस्टिस यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, और जो स्टेट का फाउंडेशन है वो भी सेम प्रिंसिपल है, स्टेट हैज टू एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और यही व्यू जो है जॉन लॉक का व्यू, इट लेटर लेट द फाउंडेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरलिज्म एंड द रूल ऑफ लॉ। नाउ इसी टाइम पे एक और लाइन ऑफ थॉट विच वाज क्वाइट प्रैक्टिकल, द यूटिलिटेरियंस। यूटिलिटेरियंस अगेन नाम से ही समझ में आ रहा है, द प्रैक्टिकल वंस, द प्रैग्मेटिक वंस। सो ये लोग जो हैं, दे थॉट इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये सोसाइटी जो है हर एक इंडिविजुअल नीड्स, एस्पिरेशन जो है उनको एड्रेस नहीं कर सकती, इंडिविजुअल कंसर्न्स एड्रेस नहीं कर सकती, बट जब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, अगर वो उनको बेसिक चीजें नहीं मिल रही है, बेसिक अमेनिटीज नहीं मिल रही है, तो पहले जो मैक्सिमम लोगों को, उन मैक्सिमम लोगों तक उनकी जो चीजें हैं वो पहुंचनी चाहिए, मैक्सिमम कंसर्न्स शुड बी एड्रेस्ड। सो इस टाइम पे द यूटिलिटेरियंस, दे गिव दिस आइडिया दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट एंड द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस बोथ एग्जिस्ट फॉर द सेम थिंग, टू मैक्सिमाइज हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। नाउ इस चीज में फर्स्ट, ये जो द प्रोविजन ऑफ बेसिक अमेनिटीज, ये जरूरी था उस वक्त के लिए, क्योंकि उस वक्त मैक्सिमम लोग जो थे वो उस गरीबी में जी रहे थे, उनकी लाइफ जो है बहुत हार्ड थी, बहुत टफ लाइफ थी, और उनके लिए सबसे पहले जब आदमी भूखा होता है, आदमी के पास कुछ रहने को नहीं होता, बेसिक अमेनिटीज नहीं होता, तो वो अपनी लाइफ की क्वालिटीज के बारे में नहीं सोचता, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, जस्टिस के बारे में नहीं सोचता। पहले जो है बेसिक चीजें सॉल्व होती है, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तभी आदमी उन सब में हाथ डालता है। सो फर्स्ट जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है, इट वॉज क्वाइट सिंपल, क्वाइट क्लियर, एंड इट हैज मेजरेबल क्राइटेरिया। बट वीकनेस ये है कि मैक्सिमम लोगों के लिए, अगर आप if you think about achieving happiness for maximum number of people, now यहाँ पे जो maximization criteria है, it has a certain ugly turn, it takes certain ugly turn कि कौन से maximum लोग, now कौन से maximum लोग में एक चीज प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी है किसी भी पर्टिकुलर जगह की, अब उस मेजॉरिटी का सिलेक्शन जो है वो किस क्राइटेरिया पे होता है, रिलीजियस क्राइटेरिया, प्रॉपर्टी क्राइटेरिया, पावर, पैट्रोनेज, जो भी है, खैर जिस भी क्राइटेरिया से वो मेजॉरिटी, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन सेलेक्ट होती है, उसकी वजह से जो वल्नरेबल माइनॉरिटीज जो होती है, दे आर मार्जिनलाइज्ड, जैसे माइग्रेंट्स हो गए, रेफ्यूजीज हो गए, वो सब में। और जैसे ये इंडिया में भी हमने देखा कि दिस यूटिलिटेरियन लॉजिक जो है, इट जस्टिफाइड लॉकडाउन हर जगह पे, लेकिन उसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई, स्पेशली माइग्रेंट्स, जो आपने देखा है कि टीवी में दिखाया था, कितने 4 करोड़ लोग जो है वो पैदल अपने घर गए। नेक्स्ट कम्स इगलिटेरियन एंड मार्क्स जस्टिस।
Now, simple thing, Marxism equated injustice with economic inequality. And economic inequality यहाँ पे the capitalism versus socialism. So overtly capitalism versus socialism nahi kaha gaya. It is about the owner class and the working class. So that's the dichotomy. That's the friction, the class struggle, the eternal struggle that exists between them. ऐसा मार्क्सिज्म कहता है. So यहाँ पे the owner class, they concentrate maximum wealth, and according to Marxism, that's injustice. So ये अगर injustice है, to achieve the balance, to achieve justice, ये चीज rectify होनी चाहिए. The wealth, it should be redistributed. और redistribution के लिए the private property need to be abolished and class based exploitation दोनों जो है दोनों को abolish कर दो. अगर दोनों abolish कर देंगे, wealth it will be distributed in a fair manner and the balance will be achieved and hence the justice, the Marxist justice. जैसे इंडिया में भी जो केरला के लैंड रिफॉर्म्स हैं, इट एग्जाम्पलीफाइड इगैलिटी जस्टिस. फिर इसी में एक न्यू लाइन ऑफ थॉट बाय अमर्त्य सेन हु एम्फसाइज कैपेबिलिटी बेस्ड जस्टिस, दैट जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, it should be on the basis of capability, which is again a matter of merit. कि if somebody deserve it, if somebody has worked up himself, if somebody has put in efforts, then it's his choice. He deserve it, he or she deserves it, and then the resources they should be distributed according to the basis of that. Now again, जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस, और वहीं उसी से आगे बढ़ते हैं. एक रिकैप की जगह उसी की थियरी शुरू करते हैं. तो हियर रॉल्स मैग्नम ऑपस, हिज वर्क थियरी ऑफ जस्टिस, इट ऑफर्ड द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर जस्टिस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज. तो यहाँ पे रॉल्स ने कहा है कि जस्टिस इज फेयरनेस, एंड दैट अगेन फेयरनेस इज द बैलेंस. सो to make his theory understandable, he forwarded a thought experiment. तो उस thought experiment में दो चीजें, the original position and the veil of ignorance. Now, idea ये है कि the people whoever exist in a democratic society, now वो कानून कैसा बनाए, रूल्स कैसे बनाए, पॉलिसी कैसी बनाए. तो उसके लिए he gave them a thought experiment कि अगर आपको पता नहीं है कि आप आने वाले टाइम में क्या हैं, इन फ्यूचर आप कौन से जेंडर के हैं, कौन सी सोसाइटी के हैं, कौन सी हेल्थ एंड इंटेलिजेंस के हैं, किस कास्ट क्लास कैटेगरी के हैं, सो यू आर ब्लाइंड अबाउट इट, डू नॉट नो व्हाट इट इज. सो दैट्स द वेल ऑफ इग्नोरेंस. सो अगर आपको नहीं पता है कि किस सोसाइटी में आप जन्म लेंगे, नाउ किस तरह के कानून, किस तरह की पॉलिसी आप बनाएंगे. सो ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इट इज कॉल्ड द ओरिजिनल पोजीशन. सो यहाँ पे अल्टीमेटली जब लोगों को नहीं पता है कि है ना, इफ दे विल बी रिच और पुअर, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, किस जेंडर के हैं, सो वो जो है वही कानून बनाएंगे दैट प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल. सो अगेन इन सिंपल टर्म्स, if you do not know what you are going to be born as, that's veil of ignorance. And now in that veil of ignorance, you are asked to set rules, you are asked to make rules or choose the principles of life. So आपको पता है कि आप वल्नरेबल भी पैदा हो सकते हैं, आप जो है एक हैंडीकैप भी पैदा हो सकते हैं, आप किसी लोअर कास्ट में भी पैदा हो सकते हैं. सो आप रूल वही बनाएंगे जो फेयर होंगे, एंड दैट्स व्हाट द ओरिजिनल पोजीशन इज. एग्जाम्पल जैसे WHO वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन है. सो WHO जो है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट जो है, ये कंट्री की कैपेबिलिटी पे नहीं करता है कि कौन किसके पास कितना पैसा है. WHO वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये वैक्सीन एलोकेट करता है ऑन द बेसिस कि कहाँ पे कितनी जरूरत है. सो यहाँ पे ये चीज आप देख सकते हैं, अगेन अ थॉट एक्सपेरिमेंट. देन ही गेव टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस. फर्स्ट, इक्वल बेसिक लिबर्टीज फॉर ऑल. सो जब ये जो जॉन रॉल्स ने कंसेप्ट दिया, एंड दैट्स हाउ इट बिकेम फाउंडेशन फॉर ऑल लिबरल सोसाइटीज.
कि सभी लोगों को बेसिक लिबर्टीज मिलनी चाहिए. Freedom of speech and expression, liberty of conscience and religion, critical participation, association, rule of law, and all of these liberties are non-negotiable and they cannot be sacrificed. And that's how we came to have fundamental right. He called them the fundamental freedom कि ये चीजें जो हैं ये cannot be taken away. They are inalienable. They are non-violable, inviolable. They cannot be, sacrificed for any other thing. Then he gave the difference principle and fair equality of opportunity. So difference principle जो है, it says inequalities, social and inequalities, social and economic inequalities, they can be accepted only if they benefit the least advantaged members of society. Like just this UPSC exam. Now, this UPSC exam, it has a coveted position, very esteemed high position of high social prestige. Now, सोसाइटी के अंदर सोशल इनइक्वालिटीज हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं. कुछ लोग जो हैं दे आर वेल प्लेस्ड, दे कैन स्टडी फ्रॉम rich coaching institution, they can even afford a mentor and personal mentor. और वही उस यही सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत गरीब हैं, है ना, उनको दिन भर काम करके फिर स्टडी करना पड़ता है. तो ऐसे में एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है रिच या जो केपेबल है वही ले जाएंगे. साथ में जो लीस्ट एडवांटेज मेंबर्स हैं, एससी हो गया, एसटीज हो गए, जो भी डाउन ट्रोडन्स हैं, तो जितने भी लीस्ट एडवांटेज हैं, लीस्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज, उन सब के लिए भी जो यूपीएससी इट प्रोवाइड्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, level playing field, and that's what the difference principle is. फिर the second concept, fair equality of opportunity. और ये तो आज हम लोग जो है समझते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट एक टाइम पे था कि ये जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज था ही नहीं. इवन इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम जो हो गया था, दैट शिफ्टेड, ट्रांसम्यूटेड फ्रॉम वर्ण सिस्टम टू द अगली फेस ऑफ कास्ट सिस्टम, जिसमें ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी थी नहीं कि जो जिसमें पैदा हो गया वही काम करना है. नाउ ये उस टाइम था, बट जॉन रॉल्स ही स्पोक अबाउट हैविंग टू प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि हर एक को जो है उनको इक्वल चांस मिलना चाहिए टू एक्सेस. कुल मिला के this mobility should be there. Everyone should have the chance to achieve that mobility, whether it's social mobility, economic mobility, good education, social status और high paying jobs. तो यही सेम प्रिंसिपल इसका भी है. डिफरेंस प्रिंसिपल का दोनों इंटर रिलेटेड है, बट इट इज अबाउट लिफ्टिंग those at the bottom, lifting the disadvantage, and here it is providing level playing field, it is providing fair opportunity to everyone. जैसे नॉर्डिक कंट्रीज की बात करते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, वहां सब पे वैसे भी आपको पता है कि वहां पे जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सिस्टम जो है वो है ना पूरी दुनिया में फेमस है. और वहां पे होता ये है कि द लेवी हाई टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, कि जिसकी जितनी वेल्थ है उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा. नाउ उस टैक्सेशन से दे प्रोवाइड ऑल द सोशल अमेनिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री एजुकेशन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, वो सब लोगों के लिए वहां पे मिलता है. सो यानी जो बेसिक चीजें जो हैं, द लेवल प्लेइंग फील्ड, द फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड दिस वन द डिफरेंस प्रिंसिपल, दोनों जो है दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे फुलफिल होता है इन द स्कैंडिनेवियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. Then John Rawls talk about reflective equilibrium. So यहाँ पे this principle it talks about two different things. First, reflection, and second, equilibrium. Now equilibrium you can equate that with balance, and reflection it is to judge one's action. So यहाँ पे reflective equilibrium के थ्रू जॉन रॉल्स ने कहा कि जितनी भी थियरीज ऑफ जस्टिस है या जो भी जस्टिस के कंसेप्शन है या उनके
जितने भी रेमिफिकेशंस हैं या जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है, जिस भी तरीके से जस्टिस आप इम्प्लीमेंट करना चाहें, लागू करना चाहें, फर्स्ट यू शुड रिफ्लेक्ट कि जो भी आइडिया है, इफ इट हैज एनी प्रेसिडेंट, इफ इट इज बेस्ड ऑन सम एथिकल एक्सपीरियंस, कि आपका जस्टिस ऐसा नहीं हो कि जैसे इंडिया में कहें कि हायर कास्ट को सारे रिसोर्सेज जो है वो दिए जाए और उनका टैक्सेशन जो है वो नल कर दिया जाए। नाउ ये एक अनएथिकल लॉ है। सो ऐसा तो होगा नहीं, बट जो माइनर जो ट्वीक्स जो हैं उनके लिए भी ये चीज है कि फर्स्ट रिफ्लेक्ट on your actions, reflect on your theories ki yes, if they are based in some sound reasoning, and then those judgment या those reflection, they must be there to achieve the balance. So that's what reflective equilibrium is. और सिंपल में आप और शॉर्ट में समझना चाहे तो मॉरल रीजनिंग, कि जो भी कंसेप्ट है जस्टिस के, जो भी आइडिया है जस्टिस का, इट शुड बी बेस्ड ऑन मॉरल रीजनिंग। देन ही टॉक अबाउट पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड ओवरलैपिंग कंसेंसस। सो इसमें ये कहा है कि एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे डाइवर्स सेक्शंस रहते हैं, एंड ऑल ऑफ दोज डाइवर्स सेक्शंस दे हैव देयर ओन वॉइस, एंड नाउ मल्टी एथनिक सोसाइटी के अंदर उन सबको एग्जिस्ट करने के लिए सबकी आवाज सुनना जरूरी है। एवरीवन्स जो व्यू पॉइंट है, एवरीवन्स कंसर्न मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। एटलीस्ट हर एक का नहीं, बट जो मेजर सेक्शंस जो हैं, जो डिफरेंट जो मेजर वॉइसेस हैं, उनका तो आइडिया दिमाग में रखना ही है। फिर उसके बाद जब बात रिलीजन्स की आती है, तब तो आपको जो डिफरेंट जितने भी वॉइसेस हैं, ये डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन है, यू मस्ट टेक देम इनटू अकाउंट, एंड दैट्स व्हाट ओवरलैपिंग कंसेंसस इज, कि आपको सबकी बात सुन के यू हैव टू अराइव एट अ शेयर्ड आउटकम। जैसे इंडिया की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यहाँ पे जैसे सोशलिस्ट लिबरल्स लाइक नेहरू है, फिर सोशलिस्ट लोहिया है, दलित एक्टिविस्ट अंबेडकर है, फिर रिलीजियस कंजर्वेटिव्स जो है राजेंद्र प्रसाद है, फिर रेवोल्यूशनरी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये हो गए। फिर उनमें जो मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी जो है सुभाष चंद्र बोस, फिर गांधी जी की बात करते हैं, तो ये सब जो डिफरेंट स्ट्रैंड जो है, दे केम टुगेदर, and then despite having deep differences they arrive at a common framework of political justice. तो ये तो आइडिया हो गए जॉन रॉल्स के। नाउ अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म्स की। नाउ द फर्स्ट criticism labeled on John Rawls from communitarian quarters is that John Rawls, he considered quite an individualistic view of justice, कि जस्टिस जो है वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, इंडिविजुअल के लिए खास है। नाउ इंडिविजुअल जो है, ही और शी इज नॉट लिविंग इन आइसोलेशन। हम सब लोग जो हैं, वी लिव इन अ कम्युनिटी, दैट्स व्हाट द नेम, कम्युनिटेरियन। सो वी लिव इन अ कम्युनिटी, और जो भी डिसीजंस होंगे वो भी कम्युनल होंगे, सोशल होंगे। इवन मैं यहाँ पे बहुत बड़े ग्रुप की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, कि आपके जो भी डिसीजंस होंगे दे विल बी बेस्ड ऑन योर फैमिली, कि और फैमिली भी एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है, बट इवन योर सिबलिंग्स, योर किड्स, योर पेरेंट्स एंड योर इमीडिएट सेकेंडरी किड्स। सो ये सब भी इंक्लूड करें तो इसमें भी 20-30 लोग हो जाते हैं, एक सिंपल जो कह सकते हैं सिंपल ग्रुप। सो इतने लोगों के जो व्यू पॉइंट है वो भी आप लोग कंसिडर करते हैं, स्पेशली इफ यू लिव इन दैट सिचुएशन। और ये होता ही है, जब हम बहुत बड़े लेवल पे एक बहुत बड़े कंसेप्ट की बात करते हैं तो हम इतना तो सोचता ही है। तो सेम जो है, ये फर्स्ट जो क्रिटिसिज्म है वो यही है कि जॉन रॉल्स, he was too individualistic, and people in general, people in practical, they are deeply moral, cultural and historically embedded, या कह सकते हैं in short they are communal in nature, communal and social in nature. So ऐसे में justice, it cannot be imagined in isolation from community, tradition and sheer understanding of good life. And ये हो सकता है, लाइक जैसे मान लो
मैं नॉर्दर्न इंडिया की जो हिंदी हार्टलैंड है उसकी बात करता हूँ ना। वहाँ पे एक लड़की के लिए, फॉर अ गर्ल, प्लीज डोंट डोंट गेट offended. So for a girl, freedom might mean, having parties, to go outside, to live one's life on one's way. But in the Hindi heartland, you know what the traditions are, what the customs are. Even if you do not want to believe in them, you do not accept what their mindset. But then you have an extended family. You have a family that you must, take their views into account. So आप यहाँ पे अपनी फ्रीडम के लिए जो भी आइडियाज हैं उनके लिए you have to arrive at a compromise. It's not a negative compromise, but a balanced compromise. बट अगर सिर्फ अपने हिसाब से अगर आप चलना चाहेंगे, देन यहाँ पे आप, जो आपका इंडिविजुअलिस्टिक नेचर है, देन यू might get ostracized from your own family. Now, the first such critic was Michael Sandel. Now, he criticized the unencumbered self. Unencumbered means isolated self. So his book, Liberalism and the Limits of Justice, he said this unencumbered self, the isolated self, which is the rational, detached chooser behind the veil of ignorance, it is unrealistic and socially alienating. क्योंकि यहाँ पे जिसके भी जो भी आइडियाज हैं, जिसके भी जो भी चॉइसेस हैं, जो भी उस आइसोलेटेड इंडिविजुअल के हैं, वो फिर सोशल नहीं होंगे। क्योंकि सोशल में, सोशल इज व्हाट पॉलिटिकल इज, सोशल एंड पब्लिक इज व्हाट पॉलिटिकल, हम लोग पॉलिटिकल बोलते ही उसको है जो हम लोग साथ मिलके, है ना, वी अराइव एट ए कॉमन सोल्यूशन। तो जैसे कॉमन सिक्योरिटी है, कॉमन एक्सटर्नल बॉर्डर्स हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटीज हैं, इंटरनल डायमेक्स हैं, द ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है, वो सब क्या है, वो सब हमारे जो है सोशल सोल्यूशंस हैं। तो यहाँ पे अगर इंडिविजुअल को दिया जाए तो फिर उनके आइडियाज और जो सोशल पैरामीटर्स हैं या सोशल थॉट्स जो है वो मैच नहीं करेंगे। ठीक है। और अल्टीमेटली फिर बात यही है कि जैसे हमारी जो भी आइडेंटिटीज होती है, दे आर शेप बाय आवर फैमिली, हिस्ट्री, कल्चर एंड कम्युनिटी, एंड वी कैन नॉट लिव आइसोलेटेड फ्रॉम देम। हमारे जो आइडियाज होंगे, डिसीजंस होंगे, दे आर एम्बेडेड इन द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट इन देम। आप कुछ भी सोचेंगे तो आप अपने बच्चों का, अपने भाई बहनों का, जिस भी सोसाइटी में रहते हैं उनका, देन द कल्चर यू एग्जिस्ट इन सब का सोच के ही यू विल अराइव एट a balanced and compromise solution. जैसे जैसे एक ग्लोबल एग्जांपल है रेफ्यूजी डिबेट्स का। So the European society, even if they talk about the liberalist principle, कि they should welcome refugees, those who are in need. Now refugees accept करने के लिए they assume कि refugees जो होंगे लिमिटेड नंबर्स में होंगे, those who are in dire need. लेकिन अब जब पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन जो है या क्लाइमेट चेंजेस जो है हर जगह बढ़ते जा रहे हैं, तो रेफ्यूजीज के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। सो ऐसे में जो लोकल पॉपुलेशन जो है अब तो फिर धीरे धीरे दे आर रेजिस्टिंग इट, कि हम लोग इतने लोग जो है अकोमोडेट नहीं कर सकते। 1000 10,000 इतने अकोमोडेट हो सकते हैं, बट नाउ दे आर द वेव्स आफ्टर वेव्स दे आर कमिंग इन मिलियंस। एंड फिर यहाँ पे जो जो आइडिया जो है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर बात करते हैं कि कैसे ये आइडिया जो है और जॉन रॉल्स का आइसोलेटेड इंडिविजुअल वाला आइडिया वो कैसे मैच करते हैं। सो यहाँ पे अगर एक आइसोलेटेड इंडिविजुअल से बोलेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि ओके यस वी मस्ट वेलकम दोज हु आर इन ट्रबल, दोज हु आर इन प्रॉब्लम। बट प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज। जो जो सोशल गार्जियंस हैं हमारे, जितने भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स हैं, उनको पता है रियल ऑन ग्राउंड सिचुएशन के कितने रिसोर्सेज हैं एंड कितने अकोमोडेट हो सकते हैं। सो जो भी सोल्यूशन होगा वो सब लोग बैठ के फिर बात करेंगे कि कितने लोगों को या किस टाइप के, किस किस प्रॉब्लम के लोगों को उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। फिर सेकंड क्रिटिसिज्म फ्रॉम चार्ल्स टेलर। Now, Charles Taylor talked about recognition and dialogical identity. Now, in his work,
multiculturalism and the politics of recognition. तो उसने एक आइडिया दिया है that we live in a society, we live in social community, we live with social bonds, and उसमें our dignity, it is tied to recognition by the community. And वो तो होता ही है. I'll just give you a simple example. Now, एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया जो है हमारे सामने होता है. एक केस स्टडी that somebody, a person A, he was mistreated by someone. Now, that person, he was mistreated by B. Let's say A was mistreated by, disrespected by B. Now, A has two solutions. First, to respond with dignity, and then to respond with malice. नाउ यहाँ पे आपको पता है कि दोनों में से कौन सा जो तरीका है इट विल बी एक्सेप्टेबल, विल बी रिकग्नाइज्ड बाय सोसाइटी. अगर ए जो है ही और शी स्टूप्स वेरी लो एंड अंडरटेक all those activities which are not accepted by society, not accepted by society in general, like जैसे कह सकते हैं कि मिसट्रीटमेंट या डिसरेस्पेक्ट के बाद he टर्न्स इनटू सम malicious एक्टिविटी, जो भी आप एग्जांपल ले सकते हैं. नाउ उसकी वजह से इसकी जो खुद का जो सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, ही बिलीव्ड कि वो वापस आ गया, बट सोसाइटी के सामने वो चीज जो है इट विल नॉट बी रिकग्नाइज दैट इवन इफ you were disrespected, you were mistreated, you have a way to respond to that. And that's why we have the administrative and judicial system. कि if something is some mistreatment, some maltreatment happened to you, then you have recourses, the legal and administrative recourses. तो यही चीज है recognition वाली कि जो भी dignity होगी it is tied to the communal, the social recognition. Now the third criticism, Alasdair MacIntyre. Now he talks about cultural relativism. So cultural relativism, which means कि कुछ आइडियाज जो हैं they vary according to the context of culture, the culture, the society you live in. So it's culture specific or context specific. जैसे जो moral reasoning है या जितने भी virtues हैं like justice, courage, honesty, all of them they have specific historical and cultural narratives. कि आज के टाइम में जैसे इवन इन वर्च्यूज की जगह पे हम दूसरे वर्च्यूज की बात करते हैं, लाइक स्ट्रेंथ की बात करते हैं या करेज की बात करते हैं. नाउ हर सोसाइटी के अंदर इसके मायने जो है वो बहुत ही अलग है. एक हाईली मैस्कुलिन, जो हाइपर मैस्कुलिन सोसाइटी होगी, उसके अंदर जो करेज का आइडिया जो होगा इट विल बी मोस्टली शोविनिस्टिक, मोस्टली रिलेटेड टू शो ऑफ, to show how much adrenaline you can push up, how much physical strength you can show, how much anger, how much aggressive you can become. So एक सोसाइटी के अंदर ये होगा. यही दूसरी सोसाइटी में courage will be to endure the tough times, to endure your shortcomings, to endure your fallback times. So ये यहाँ पे दोनों ही सोसाइटी के अंदर ये चीजें अलग अलग हैं. सो कल्चरल नैरेटिव, जो कल्चरल रिलेटिविज्म इज देयर. जैसे इंडिया के में अंदर भी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, नाउ द विलेज लेवल जस्टिस, गांव के लेवल पे जो कास्ट लेवल पे जो जस्टिस हैं, इट ऑपरेट्स थ्रू पंचायत्स. सो उन पंचायत्स में जो कास्ट पंचायत है वहां पे लोकल कस्टम्स हैं, ऑनर कोर्ट्स हैं, ओरल ट्रेडिशंस हैं, या जो भी जो कल्चर स्पेसिफिक, द लोकेलिटी या स्पेसिफिक कल्चरल डिसीजंस जो होगा वो वहां पे काम आएगा. एंड द फाइनल क्रिटिसिज्म दैट्स फ्रॉम माइकल वॉल्जर. सो ही सेड दैट कि सिंगल प्रिंसिपल, एक सिंगल आइडिया, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, इट कैन नॉट गवर्न ऑल गुड्स. सो ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, जिसमें सोसाइटी जो है इट इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट स्पेयर्स, जिसमें हर सब लोग जो हैं अपने अपने जो
जो स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स हैं उनके अंदर काम कर रहे हैं. सम आर वर्किंग इन हेल्थ, सम एजुकेशन, रिलीजन, वेल्थ, ऑनर, जितने भी क्राफ्ट्स हैं सबके अंदर अब काम कर रहे हैं, और हर एक के अंदर देयर इज अ डिफरेंट लॉजिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और यहाँ पे यही लॉजिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इट गवर्न्स दैट कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी. लाइक जैसे मेडिकल केयर है, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू नीड. नाउ मेडिकल केयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन मेरिट, या it cannot be based on patronage or political access or the bank balance. फिर the political power है, it cannot be distributed according to need or merit. It has to be on your power, your ability to mobilize people from according to democratic legitimacy. फिर एकेडमिक डिग्रीज जो है वो नीड के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो दे नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू मेरिट. फिर यही सेम प्रिंसिपल्स जो हैं सबके होते हैं. सोशल सिक्योरिटीज जो होती है, दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू नीड. जैसे फूड जो है वो पुअर को दिया दिया जाना चाहिए, गरीब आदमी को, ना कि अमीर आदमी को. सो ये है द कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी बेस्ड ऑन द लॉजिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. फिर यहाँ पे ही गेव द वार्निंग अगेंस्ट डोमिनेशन, कि जैसे एक एक स्पेयर जो है, इट ट्राई टू इन्फ्लुएंस और डोमिनेट द अदर. जैसे पैसे की वजह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो कॉर्पोरेट जो हैं वो ये करते हैं, पॉलिटिकल लॉबिंग. फिर यही अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है तो दे इंडल्ज इन करप्शन. सो यहाँ पे एक चीज से दूसरी चीज में, जैसे मेडिकल केयर के अंदर भी यही है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके अंदर जो रिच है, जो जिसके पास पैसा है, उनका उनका इलाज हो रहा है. गरीब आदमी जो है, इट इज ऑफन टर्न डाउन, टर्न अवे. फिर एक ये भी एग्जांपल है जो मैंने खुद डाला है यहाँ पे, वो है सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेकर. नाउ यहाँ पे सिविल सर्विसेज विच इज टू नो सपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. नाउ यहाँ पे वॉल्जर का जो क्रिटिसिज्म है, इट हेल्प अस रिफ्लेक्ट कि अगर कोई आदमी 25 तक की एज, 25-27 तक की एज तक ऐसे लिखकर कैसे वो लाइफ लॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक पावर उसको मिल सकती है. नाउ ये सेम क्वेश्चन भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है. नाउ आई नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऐसे, बट देन इट इज नॉट अबाउट क्लियरिंग थ्रू एकेडमिक मीन्स. You are handling so much power, you handle so much responsibilities, and even I believe, and most of people believe that this is just the beginning. उसके बाद भी they are shaped, they are trained, and they are infused with the administrative rigors. But still, this criteria, this does not fit the responsibility, the pressure they hold. फिर बात करते हैं रॉल्स ने अपने डिफेंस में क्या कहा. तो यहाँ पे फर्स्ट जो आइसोलेटेड इंडिविजुअल है उसमें रॉल्स ने क्लेरिफाई किया दैट इट इज नॉट द रियल सिचुएशन, बट अ मेंटल टूल टू हेल्प अस थिंक फेयरली. लाइक यस, वी लिव इन कम्युनिटी and most of our ideas, most of our belonging, they are based on culture. But then this thought experiment, it was forwarded so that people can think impartially beyond the immediate social needs. फिर second जो है second defense from moral philosophy to political liberalism. So यहाँ पे he said that justice should be a political idea. So again, political idea which is the commonality brooded by our social existence. पर उसके according, this political idea, it should not be based on any religion or philosophy. हमारा जो justice का idea है, it can work in plural society, but then it will not work in any other society. क्योंकि plural society में people will agree to disagree and disagree to agree. क्योंकि उनको साथ में रहना है. The coexistence will be there. जग मार के साथ में रहना है तो फिर उनको एक बैलेंस मिडिल ग्राउंड पे आना ही होगा. बट यही दूसरी सोसाइटी है. अगर कोई कंसेप्ट जो है, इफ इट इज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड फिलोसफी,
सो पहली तो ये आइडिया ही पूरा जो है फिलोसॉफिकल या एब्स्ट्रैक्ट होगा, जो प्रैक्टिकल नहीं होगा। फिर अगर सोसाइटी इज बेस्ड ऑन रिलीजन, तो वो एक एक थियोक्रेटिक स्टेट होगा। फिर उसमें जो प्लूरलिटी जो है वो तो काम आएगी नहीं। फिर उसमें जो ओल्ड आइडियाज जो है, जैसे शरिया लॉज जो है, जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। फिर ओवरलैपिंग कंसेंसस के बारे में इसने कहा कि यस, जैसे इट इज नॉट अबाउट imposing the majoritarian will on people from different religions or different sections. उसका overlapping consensus है, it said कि people with different belief, people of different religions of different sections, they still can agree on basic principle. पहला रीजन तो यही है कि they have to coexist, उनको साथ रहना ही है। बट यहाँ पे जॉल्स ने कहा है कि they will agree, but they might have different reasons. And then justice without cultural uniformity. So यहाँ पे इसने कहा है कि justice doesn't erase culture. जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि if justice will be brought, then the idea of cultural relativism will be gone. जैसे इंडिया में भी जो ट्रिपल तलाक का जो है, कि वो एक कल्चर स्पेसिफिक है। जो मुस्लिम लॉज जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉज जो है, वो कहते हैं कि तलाक दे सकते हैं, 3 बार बोलो तलाक दे सकते हैं। इंडिया के अंदर भी डॉटर्स जो है वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकती है। फिर जो पेट्रियार्कल रूल्स जो है वो भी बहुत सारे चलते हैं। जो वेल जो है, घूंघट जो है, वो भी बहुत सारी जगहों पे चलता है। तो अगर जस्टिस की बात करें, देन इट विल बी अबाउट रिस्टोरिंग द बैलेंस। सो रिस्टोरिंग द बैलेंस है तो देन वेल हैज टू बी अपलिफ्टेड, वेल हैज टू बी abolished. So अगर if veil is lifted up, if veil is abolished, तो साथ में फिर उसमें कल्चरल इरोजन भी होगा। तो यहाँ पे रॉल्स ने कहा है कि it is about achieving the fairness. So it justice should not be equated with reform. Now reformation is a different thing. It is a social phenomena, but at political level, it is more about achieving what has been snatched from someone, and what can be given to someone to complete it, to complete him, to complete her. So ऐसे में जो वेल का आइडिया है, द लिफ्टिंग ऑफ वेल, सो जस्टिस लाने से वेल जो है वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल एंड मोस्ट ऑफ आवर डिसीजंस दे आर आल्सो बेस्ड ऑन विच सोसाइटी वी एग्जिस्ट। सो बाकी आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से ये चीज़ है। वेल का तो एक दिया है, जितने भी जैसे जो मैरिज लॉज जो हैं, या जो इनहेरिटेंस लॉ है, पर्सनल लॉ जितने भी हैं, वो सब भी इसी पे डिपेंड करते हैं। फिर ये PYQs हैं, ठीक है, जो आप PDF में इंक्लूड करूंगा, तो आप PDF के अंदर देख लीजिए, क्योंकि लंबा लेक्चर हो गया है। और साथ में स्पेकुलेटिव आंसर्स भी मैंने दिए हैं, सो प्लीज़ डू हैव अ लुक एट इट, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव आंसर्स जो हैं ये इंडियन और जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है उनके लेटेस्ट पैटर्न से लिए दिए गए हैं। सो दिस इज इट। नाउ दिस हैज बीन अ लॉन्ग लेक्चर। इफ something has gone below the radar, बोलने वाले radar नहीं, नॉलेज वाले radar, कुछ छूट गया हो, कुछ जो है आप लोग डिटेल में चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, so you have the comment section, you have the community section, engage, and then we will rise together, we will progress, और जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिलेंगे। This is it. Thank you very much.